more than 88% women actually gets harassed or molested. I have spoken to young women in colleges where they think literally that every man out there is just waiting for them to step out and harass them. हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ दी गर्ल नेक्स्ट डोर, जहां हम बातें करते हैं दिल से दिल तक। जैसा कि आपको पता है कि ऑन ईच ऑफ दी गर्ल नेक्स्ट डोर एपिसोड वी एम्पलीफाई वॉइसेस, शेयर स्टोरीज एंड सेलिब्रेट लाइफ ऑफ एवरीडे हीरोज। आई एम योर होस्ट एंड दी गर्ल नेक्स्ट डोर स्नेहा कश्यप ठाकुर टुडे with yet another exciting episode of the Girl Next Door with another inspiring guest with us. She's a renowned travel blogger, author, and speaker who has left a significant impact on the tourism economy of India and beyond through her blog Indie Tales. She has traveled to 18 countries and numerous corners of India, sharing her travel tales and book reviews with a wide audience. Beyond her travel, she has also contributed to the print publication and mentored startups in the travel space. Recently, she made waves when she shared her journey of experiencing feminine energy, visiting Devi temples, and understanding the tantric practices across Devi temples in one of the most renowned podcast shows by Ranveer Allahabadia. Please join hands in welcoming the incredible, the amazing, the traveler, Anuradha Goyal. Hi, ma'am. How are you doing today? Thank you so much for joining us. Namaste. Thank Namaste, you ma'am. so much for having me, Sneha. Huge namaste to you and to your listeners and viewers. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा कॉन्वर्सेशन बहुत ही कैजुअल है, बहुत ज्यादा एडिट्स, बहुत ज्यादा कट्स नहीं होते हैं। वी कीप इट रॉ एज मच एज पॉसिबल। और जब हमने आपका पॉडकास्ट सुना था तो हमें लगा कि आप खुद बहुत रॉ हैं और आपके ब्लॉग्स में वो दिखता है। यू टॉक अबाउट थिंग्स एज दे आर। तो यू नो इट्स फैंटास्टिक टू हैव यू हियर। जब मैंने आपको पहली बार बियर बाइसेप्स पे सुना था तो मैं आपके ब्लॉग पेजेस के थ्रू गई, एंड व्हाट एन इनक्रेडिबल जर्नी मैम। सो मेनी visits to so many temples, national heritage sites. You began Indie Tales back in 2004. What inspired you to start writing about travel experiences and book reviews? A spirit of experimentation and curiosity. So 2004, blogging was a new tool. It was a new toy, a digital toy, and I was just playing around with it. I never knew that it will become identity of mine. It will bring me to where I am today. It was just a new toy, and I used to be working in the corporate world then, and so every weekend I used to be either reading books or traveling. So I would write whatever my experiences were from the travels, or whatever my reflections from my readings were. I would put all of that onto the blog, and since they were not men, we used to get a lot of interactions. So it was a fun thing to be able to connect with people over common interests, to learn from your readers, to share your knowledge with them. So it was a great tool, and as you said, it was very raw then. In those good old days, what we wrote, what we documented was very raw. We wrote it as we saw it, and people also reacted the same way. Commercialization had not kicked in. Nobody was paying us to do that. So there was no, जिसको हिंदी में मल कहते हैं ना, it was हाँ, absolutely nirmal. So हाँ, you know, because there were no ads, there was nothing. So you were doing it for the sheer joy of sharing, discovering. You're discovering the word, you're discovering the wonders, and you want to share it with the world, and the world wants to share it back with you. So it was absolutely that, but it helped me grow as a traveler, as somebody who understands India now through the lenses of art, history, heritage, spirituality, temples, pilgrimages. I wouldn't have done all this without the blog. So I actually call my blog my sacred space, because it has given me a lot. It has been an incredible part of my spiritual journey as well. My spiritual journey, you know, my connect with the world is through my blog. I don't know how long will it last, but it is my sacred space. हाँ, मुझे भी रिसेंटली किसी ने कहा कि क्रिएटिविटी जो होती है और जो आप अंदर से करते हो, उसके पीछे ना, जब तक आप वो अंदर से करते रहते हो और क्रिएटिव रहते हो, तो आप बहुत ज्यादा आरओआई के बारे में नहीं सोचते हो कि वो क्या रिटर्न दे रहा है।
You just enjoy doing it, and when you enjoy doing it, there is no doubt about how long it will last. So that's because also an ROI, na? Ka Anand is also an ROI. ROI, So हाँ. you know what you do. So let's say you earn a lot of money, and then you want to spend it on things that give you joy. Joy, right. ये आपको without the root of money directly joy दे रहा है. हाँ, हाँ, मुझे ये बताइए कि जब आपने स्टार्ट किया था 2004 में, पॉडकास्टिंग वाज नॉट अ थिंग, इंटरव्यूज No, बहुत no, कम होते थे, no. तो ब्लॉगिंग का आइडिया क्यों आया? मतलब क्यों लगा कि मुझे अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस को ब्लॉग करना चाहिए? मैंने बोला ना कि मैंने ऐसा कुछ सोच के नहीं शुरू किया था. मेरे लिए हाँ, ब्लॉगिंग वाज अ न्यू टूल. ब्लॉगिंग हाँ, इटसेल्फ वाज अ न्यू टूल. तो अभी कुछ नया आया है, लेट्स क्रिएट समथिंग आउट ऑफ इट. अच्छा, I've always been a traveler. So travel करते थे, वापस आके ब्लॉग पे वैसे का वैसा लिख दिया. हाँ, And it is the interactions. तो आपको मजा आता था वो वापस मजा- आके लिखने में? हाँ, मजा आता था लिखने में और फिर उसके बारे में इंटरैक्ट करने में लोगों से. इन द गुड ओल्ड डेज इंटरैक्शंस यूज्ड टू बी ब्यूटीफुल. देयर वर नो पेड Absolutely. इंटरैक्शंस, देयर वर नो SEO guys spoiling your comment section. I still enjoy reading those comments where, you know, if I've written 400 words, there'll be 500 word comment telling me, अरे तुम वहां गए थे, ये नहीं देखा, वो नहीं देखा, अगली बार ये देखना. I still remember this was, I think, 2010. I was planning a trip to Bengal and I wanted to go to Calcutta and then Shantiniketan. I spoke about it on social media or somewhere that I'm going here and I'm planning to go here. And somebody said, you know, somebody like you would love to visit Bishnupur temples, terracotta temples of Bishnupur. तब तक मैंने उनका नाम भी नहीं सुना था. मैंने भी नहीं सुना है. अच्छा, अब सुन लिया. So in details में उसके बारे में बहुत डिटेल में लिखा है. तो then I of course went to the libraries. I read about it and I changed my whole plan and we visited Bishnupur and I can't thank that person enough for recommending it. So ऐसे बहुत सारे एक feedback loop के through ये बढ़ता गया. So मैंने कुछ सोच के नहीं किया था. मेरे लिए it was a new tool. You know कि अभी ये कुछ नया आया है, let's play around with it. Simply out of playfulness. जैसे देवी भी इस दुनिया को एक playfully बना देती है ना कि चलो कुछ खेल के देखते हैं. Exactly उसी spirit में शुरू हुआ था ये. मैम, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जितना मैंने आपके ब्लॉग को पढ़ा है इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ लिटिल बिट अबाउट यू, मुझे लगता है कि आपका एक बहुत ही यूनिक वे ऑफ एक्सप्रेशन है अराउंड द प्लेसेस यू विजिट, विच इज वेरी लाइक जो आज की दुनिया में AI की तरफ बढ़ रही है दुनिया, उस दुनिया में जहाँ आप चैट GPT और इनसे 4 चीजें पूछ सकते हैं, वहाँ आपने जो चीजें लिखी हैं उसमें एक बहुत ही ज्यादा पर्सनल टच है. सो थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग दोज ब्लॉग्स एंड शेयरिंग इट विद द वर्ल्ड, क्योंकि इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड टू अ लॉट ऑफ रीडर्स like me. Thank you. I would say thank God I got to do all this before ChatGPT and AI came. Because now the joy is not there. I mean, something that a machine can do, what joy would you get out of doing that? But having said that, also let me tell you, ChatGPT is at this point in time is something, I'm trying to put it nicely, but it's like a mass copying tool. It can only recycle what is already there in some servers at this point in time. So it can give you what is already there. It cannot give you my experiences. Yeah. I mean, today it can pick up from my blog and give you, but it cannot give you that experience. जब आप सड़क पे चलते हैं, किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, वो जो आपका अनुभव है, वो तो चैट जीपीटी आज की डेट में नहीं कर सकता, कल कर ले, क्या पता. हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. पंकज त्रिपाठी जी की एक लाइन है जो वो कहते हैं कि आपको जो एक्सपीरियंस इंडिया की ट्रेन जर्नी में मिलती है, वो आपको जिस तरीके से ग्रो कराती है, वो आपको ना बुक्स पढ़ के या फिर सिर्फ घर में बैठ के टीवी देख के नहीं मिलेगी. यू हैव टू गो एंड travel to find that. I would say travel is the biggest university you can go to. You know, जिसमें आपको ये भी नहीं पता आप क्या सीख के आओगे, और वो सीखने में जो मजा है ना, और वो एक बार आपने जब सीखा ना, वो आपके अंदर से कोई निकाल नहीं सकता है. जैसे बहुत बार लोग बोलते हैं इंडिया इज नॉट सेफ फॉर women to travel. I said यार मेरे से आके बात करो. I have traveled, walked around the length and breadth of this country. मैं ये नहीं मान सकती. I mean, I'm not talking about small incidents where you get stuck in a riot or something. वो छोड़ दो. General, common, India or most parts of the world are absolutely beautiful to travel to, even as a solo female traveler. So, जब मैं अनुभव से बोलती हूँ, तो आपका डेटा उसके सामने कुछ नहीं कर सकता. No
amount of data can convince me that the world is unsafe or the world is not beautiful. मेरा अनुभव है ना, वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कैसे कर रहे हो आप तो एक न्यूज रूम में बैठ के सिर्फ डेटा से बात कर रहे हो. लाइक कबीर सेज, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन देखी. हाँ, बिल्कुल सही बात है. और मतलब पॉकेट्स में है, देयर आर पॉकेट्स जहाँ पे कि क्राइम और जहाँ पे कि वुमेन सेफ नहीं है, लेकिन आई थिंक देयर आर ये यूनिवर्सल नहीं होता. दिल्ली हाँ, यूनिवर्सल नहीं. ठीक है. अब आई वुड से दिल्ली प्रोबेबली इज, इन बड़े शहरों में, दिल्ली में प्रोबेबली द सेफ्टी इशू इज मैक्सिमम. लेकिन वो सेफ्टी इशू भी शाम को अंधेरा होने के बाद है. आप सुबह दिन में घूमते रहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. वो उस सिटी का मिजाज है, उस सिटी की नेचर है, क्योंकि वहाँ 7 बजे के बाद आपको महिलाएं आपको सड़क पे नहीं मिलती. वही बॉम्बे है, वहाँ ऐसा नहीं है कि दैट्स सेफर या स्टैटिस्टिकली इट्स नॉट डिफरेंट फ्रॉम दिल्ली, बट वहाँ पर आपको महिलाएं रात को 12 बजे भी बाहर मिलती हैं. तो दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस. मैं दिल्ली में बहुत साल रही हूँ और मुझे लगता है कि जैसा शहर होता है आप वैसे अडेप्ट करके वैसे हो जाते हो. देन यू मेक श्योर यू डू एवरीथिंग यू वांट टू डू ड्यूरिंग द डे. हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि आई एम नॉट अ नाइट पर्सन हु हैज टू पार्टी एट नाइट. आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन एट ऑल. सो हमको पार्टी करने नहीं जाना है, तो उस सेगमेंट से मेरा डिसएग्रीमेंट हो सकता है जो बोलते हैं कि फ्रीडम मीन्स पार्टी एट नाइट. उनके साथ शायद ये तालमेल नहीं बैठे. हाँ, ठीक है. मुझे लगता है कि एवरीबडी हैज देयर चॉइस एंड एज लॉन्ग एज एवरीबडी रिस्पेक्ट्स एवरीबडीज चॉइस, वी आर लिविंग इन अ फ्री वर्ल्ड. तो हम ये नहीं कह सकते कि आप वो मत करो, मैं एक सर्टेन चीज नहीं कर रही हूँ, आपको जो एक सर्टेन चीज करना है आप वो करो, लेकिन यू नो द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ इट. हर चीज का एक प्रॉस कॉन. एब्सोल्युटली. दूसरा, आई एम सेइंग बी अवेयर ऑफ द डेंजर्स. बहुत बार हमने ऐसा, जब आप बाहर होते हैं तो रिस्क किस तरह से आपके सामने आके खड़ा हो जाता है वो तभी पता चलता है. तो एक होता है कि आपने प्लान नहीं किया था लेकिन आप रिस्की सिचुएशन में फंस गए. एक है आप जानते बूझते हुए रिस्की सिचुएशन में जा रहे हैं. तो कहना मुश्किल है, लेकिन जितना ट्रैवल किया है और जितना मैं ट्रैवल अपने फ्रेटर्निटी में बहुत सारे ट्रैवल राइटर्स को जानती हूँ, उनमें से तो किसी ने कभी नहीं कहा कि इंडिया अनसेफ है. हाँ मैम, वही है कि वेरिएशन इतना ज्यादा है, लेकिन आपने 18 कंट्रीज और काउंटलेस नुक्स एंड कॉर्नर्स ऑफ इंडिया विजिट किया है और ट्रैवल किया है. आपका सबसे मेमोरेबल ट्रैवल एक्सपीरियंस क्या रहा है एंड क्यों रहा है? मेरा हर ट्रैवल एक्सपीरियंस मेमोरेबल है. मैं तुम्हें बताती हूँ, अब तो मैं जब ट्रैवल करती हूँ मैं बहुत पढ़ के जाती हूँ, मैं पुराण तक पढ़ के जाती हूँ उस स्थान के बारे में, तो मुझे बहुत पता होता है, बहुत लोकल लोगों से बहुत ज्यादा पता होता है जब मैं वहां पहुंचती हूँ. लेकिन मैं थोड़ा स्पेस हमेशा छोड़ती हूँ फॉर द मैजिक टू हैपन. तो उसमें आप कुछ मत एक्सपेक्ट कीजिए. आप एक वॉक ले लीजिए, कहीं पर भी एक आराम से बैठिए, लोगों को ऑब्जर्व कीजिए, लोगों से बात कीजिए, तो वो जगह आपके साथ बात करने लगती है. तो जब जगह आपके साथ बात करती है उसके बाद मैजिक होता है. और आई डोंट रिकॉल एनी ट्रिप जहां पर मुझे कुछ ऐसी अद्भुत बात ना पता चली हो जो मुझे पहले नहीं पता थी. कभी किसी से कॉन्वर्सेशन में, कभी किसी चीज से, या कितने भी आप वीडियोस देख लीजिए, कितनी फोटोज देख लीजिए, कितना पढ़ लीजिए, लेकिन जो वहाँ खड़े होने की अनुभूति होती है वो एक अलग ही होती है. तो हर जगह और हर ट्रिप में मुझे कुछ ना कुछ अद्भुत मिला है. तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक मेमोरेबल है, हर जगह एक अलग कारण से मेमोरेबल. लेकिन कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो आपके दिमाग में आज भी स्टैंड आउट करती है, या जिसके बारे में आप सोचते हो कि मैं यहाँ वापस जाना चाहूंगी, या हर जगह आप वापस जाना चाहोगे? नहीं, आइडियली तो मैं हर उस जगह पे जाना चाहूंगी जहाँ मैं अभी तक नहीं गई हूँ. नहीं, मैं उन जगह की बात कर रही हूँ जहाँ आप जा चुके हो. क्या आप कोई ऐसी जगह है जहाँ वापस जाना चाहोगे? तो जो जितनी इंडिया की प्राचीन पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं वहाँ मैं बहुत बार जाना चाहूंगी. लाइक बनारस मैं बहुत बार जाना चाहूंगी. मैं बचपन में 1-1.5 साल वहाँ रही हूँ. अभी रिसेंटली बहुत ट्रिप्स हुए हैं, बट दैट इज वन प्लेस आई वुड लाइक टू गो बैक अगेन एंड अगेन. जितने हमारे तीर्थ स्थल हैं, जितनी हमारी सप्तपुरियां हैं, 4 धाम हैं, वहाँ मैं कभी भी जा सकती हूँ. हालांकि अभी भी बहुत ऐसे तीर्थ स्थल बाकी हैं जहाँ मेरा पहला ट्रिप नहीं हुआ है. तो माई टॉप ऑफ द लिस्ट इज प्लेसेस दैट आई एम येट टू सी. रिपीट करने का मुझे उतना शौक नहीं है, क्योंकि मैं एक बार में ही बहुत अच्छे से कवर कर लेती हूँ. मैं शांति से करती हूँ, भाग दौड़ में नहीं. आई वुड स्टिल से कि नई लोकेशंस देखना इज मोर इम्पोर्टेंट across the world. Like I would like to go and see all the places that have an ancient civilization, चाहे वो ग्रीस हो, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो ग्वाटेमाला हो, मेक्सिको हो, पेरू हो. So अच्छा है, ये सब जगहें मैंने अभी तक नहीं देखी हैं. तो let's see when they call me. हाँ, मुझे लगता है कि जो जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो एक कल्चर और स्टोरी कहती हैं आपको अबाउट ह्यूमैनिटी की, हाउ इट इवॉल्व्ड. एंड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि आपने बहुत सारी साउथ एशियन कंट्रीज को ट्रैवल किया है और
आपने काफी नॉन साउथ एशियन कंट्रीज भी ट्रैवल किया है, तो क्योंकि ये पॉडकास्ट में हम गर्ल नेक्स्ट डोर की बात करते हैं, तो आपको क्या कॉमन अक्रॉस द विमेन ऑफ दीज कंट्रीज लगा है? क्या कोई कॉमन थ्रेड लगा जो आपको हर विमेन इन दीज कंट्रीज में दिखा हो कि ये एक जो फेमिनिटी है, और या फिर ये जो एक कहते हैं ना कि शक्ति का जो एक प्रारूप है, वो हर कंट्री में मोर और लेस सेम है? आई थिंक आग में बांट सकते हैं। एक में जहाँ स्त्रियां ये विश्वास रखती हैं कि मैं शक्ति हूँ, शक्ति मेरे अंदर है, उसको कितना कब कहाँ कैसे दिखाना है वो मैं चुनती हूँ कि कहाँ पर मुझे अपना दुर्गा रूप दिखाना है, कहाँ सरस्वती रूप दिखाना है, कहाँ एक छोटी बच्ची बनके या कहाँ अबला नारी बनके काम करना है। तो एक सेक्शन है जहाँ पर स्त्रियां ये बिल्कुल भूल गई हैं कि मेरे अंदर शक्ति है। उनको तो लगता है मैं निर्बल हूँ और जो सारी शक्ति है वो मेरे से बाहर है, तो दूसरा मुझे शक्ति देगा, जो मुझे नर्चर करेगा, जो मेरे को नौकरी देगा, जो मुझे सहारा देगा, जो मुझे एम्पैथी देगा, जो मुझे अपॉर्चुनिटीज देगा, वो मुझे एम्पावर करेगा। तो एशिया में मुझे ज्यादा वो स्त्रियां मिलती हैं जो देखने में शायद आपको बहुत निर्बल लगे, लेकिन उनको अंदर से पता है कि अपना जीवन कैसे चलाना है, वो वैसे चला रही हैं। वो दिखेगा नहीं आपको, क्योंकि हम बहुत वेस्टर्न लेंस से देखते हैं। तो जब हम वेस्टर्न लेंस से देखते हैं तो हम एक देखते हैं एक 80 साल की बुढ़िया या 60-70 साल की बुढ़िया है, और वो एकदम हड्डियों का ढांचा है और वो एक कोने में बैठी है, हमें लगता है बहुत निर्बल है। नहीं, वो निर्बल नहीं है, क्योंकि आज भी उसके घर में अगर उसके बच्चे उसकी बात सुन रहे हैं या उसको नीडेड रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो she is the one who is ruling that household. कमांड कर रही है वो एनर्जी। हाँ, एनर्जी कमांड कर रही है, उनकी इच्छा से चल रहा है। अब वो इच्छा किस तरह से हो रही है, that differs from home to home and person to person. तो ये एक बहुत ही जिसको आधारभूत अंतर बोलते हैं वो है। और आपको एक्चुअली रूरल इंडिया में और रूरल एरियाज में आई फील दैट वुमेन आर फार मोर पावरफुल देन इन द अर्बन एरिया। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा मुझे अपने अनुभव से लगता है। तो ऐसा आपने क्या देखा है? क्योंकि ये जो आप बता रहे हो ये मैंने और भी सुना है, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि व्हाट मेक्स यू थिंक दैट, कि क्या है जो हम अर्बन एरिया में नहीं कर रहे हैं आज के डेट में? अर्बन एरिया में हमें ये नैरेटिव बेच दिया गया है कि तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है। I have spoken to young women in colleges where they think literally that every man out there is just waiting for them to step out and harass them or violate them or trouble them at least. जबकि ऐसा नहीं है। It's very ironical क्योंकि today women are so much out. आज से 1-2 generation पहले a very small population of women used to be out of their homes. Today everybody is out and everybody is working in a space full of men and women and still everybody feels so disempowered. Yeah ma'am, because मतलब वही, और मैं डेटा की बात करूंगी क्योंकि एक्सपीरियंस मेरा ट्रैवल का उतना नहीं है, बट डेटा के बेस पे more than 88% women actually gets harassed or molested in their lifetime. 88% of what? Have you spoken to 100% of women? No, not 100. Like 88% of the entire population in the world, they get harassed. Even in the United States, 1 in every 10 women is actually either harassed or molested, or they have gone through some kind of domestic violence. So first of all, I question this data. Okay, so ये particular data आप जो quote कर रहे हो वो तो मुझे नहीं पता कहाँ से उसका source क्या है. But I'll give you a example from this सेफ्टी स्पेस। तो एक बार 4-5 साल पहले इंडियन मीडिया में एक बहुत बड़ा नैरेटिव चला था कि ऐसा ही कुछ नंबर था, 80-90% women feel unsafe। जब मैंने उस डेटा की खोज में जाके देखा तो एब्सोल्युटली 15 औरतों को इंटरव्यू किया गया था, और वो 15 की 15 मीडिया वर्ल्ड से थी। एंड मीडिया वी नो कैन बी ब्रॉट वेरी इजी। नो दे कैन बी ब्रॉट वेरी इजीली। Brutal in media and these are the people who travel. See, journalists and media people get a lot of protection. Even in the war zones they get protection, right? And they are very very powerful. Today everybody is scared of them. No ma'am, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि जैसे मैं as a host, मेरा एक जो एक्सपीरियंस रहा है ग्रोइंग अप, मैं बिहार में पली बड़ी हूँ, और मैं बिहार से मैं पल बढ़ के फिर चेन्नई में एजुकेशन करके फिर यहाँ आई हूँ, और मैंने अपनी लाइफ में आई हैव बीन मोलेस्टेड एट टन्स ऑफ टाइम।
like not once twice, like multiple times. अच्छा, मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, मैं डेटा छोड़ देती हूँ, मेरे जितने फ्रेंड्स हैं जिनको मैं जानती हूँ, हर एक लड़की एटलीस्ट वंस मोलेस्ट हुई है. हमने कोई बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं किया है, हम नॉर्मल ट्रेन में जाते थे. मुझे आज भी याद है कि ट्रेन की जो जनरल बॉगी की जर्नी होती है वो आप लेते हो, आप चल रहे होते हो ट्रेन में. देयर आर पीपल हु प्रेस योर ब्रेस्ट फ्रॉम फ्रंट, देयर आर पीपल हु प्रेस योर बम्स फ्रॉम बैक, एंड यू कैन नॉट जस्ट डू एनीथिंग अबाउट इट. सी मुझे नहीं पता बिहार में ग्रोइंग अप कैसी थी, बिकॉज आई हियर लॉट ऑफ हॉरर स्टोरीज फ्रॉम बिहार, सो दैट कुड बी अ केस. इंसिडेंटली आई ग्रू अप इन चंडीगढ़ वेयर वी वर प्रोबेबली चंडी का रूप. हाँ, मतलब मेरी जो फ्रेंड्स दिल्ली से हैं, मुझे तो इतना याद है कि एक बार व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन द हॉस्टल इन पंजाब यूनिवर्सिटी, तो एक बार किसी ने कोई एक अश्लील गाना गाड़ी में चलाते हुए हॉस्टल के सामने से निकाल दिया था, तो हमने तो सब लड़कियों ने मिलकर उसकी गाड़ी तोड़ दी. और आप बता रहे हो अपने हॉस्टल की टाइम, और मैंने शायद आपसे काफी साल बाद पढ़ाई करी है जी. मैं चेन्नई में थी, चेन्नई में भी सेम चीज फेस की है मैंने. और मैंने नहीं, मतलब जो चेन्नई के हैबिटेंट्स हैं, जो हैबिटेंट लड़के हैं, उन्होंने हैदराबाद में थी, हैदराबाद में फेस किया. मतलब एक होता है कि आपने छोटे एज में फेस किया है, बट एवरी स्टेप ऑफ लाइफ इफ यू हैव फेस्ड इट, तो आपका ना बिलीफ इस चीज में और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है कि नहीं ऐसा है, इस तरीके की चीजें हो रही हैं. और शायद इसीलिए अर्बन, और मैं चाहती हूँ कि आप इस पे थोड़ा और लाइट डालें. मैं इसको सॉल्यूशन के उसमें मांगती हूँ. सो मे बी 20 years बैक सिचुएशन थी, women were not. Today women are strong enough, you know, there are enough women, you know, all you need to do is switch on your camera and be done with it, you know. You can do a lot of damage to the person, whoever is doing. That also has a negative and positive. Everything has a negative and positive. You know, and we also know of cases where women have also used this to their advantage. At this point in time, I see a lot of men scared of dealing with women because they don't know what is going to come back in what form. So somewhere that gender balance is completely lost, you know. So overall what we are losing is trust on each other, between genders and amongst genders also. So somewhere the digital world, while at one level it is connecting us, you know, but for digital world you and I would not be talking. But at the same time, it is also distancing us from people around us. One solution that I really want, and maybe through your listeners at least will reach a small population, is to go and create your social network in your neighborhood, wherever you live. Today, people take pride in saying, I don't know who my neighbor is. You know, it's a cliche almost. But let me tell you, I make an effort to have a network, my social network in my neighborhood. And I have to make an effort because I'm also living in the same world where people are hesitant in thinking. More often than not, everybody is not talking to the other person thinking, you know, they may not be interested in me. You know, everybody is thinking the same about each other. Believe me, today, how clogged our cities are, how difficult it is to even travel from one part of the town to another part of the town is, the best is to have a good network in your neighborhood so that you can eat together, you can celebrate together, you are there for each other in good and bad times. You can network without taking out your car, without changing your clothes, without, in a very casual manner, you know, like an extension of your own house. And the way we are, because most of us are migrants, wherever we are all migrants. So it will take effort for some people, but once you have that network, it is going to help you build your interpersonal skills. It's going to give you that much needed social cushion that we all need. So you will be a cushion to somebody and somebody will be a cushion to you. Do that, and whenever you have that, I see you have a very satisfied, fulfilled life because you have your social circle, you have your support system around, and you don't have to make an effort for that. You know, you don't have to spend 1 hour in the traffic to meet a person. You can just open the window and talk to somebody. But that is a very beautiful thought, ma'am. But what happens is, like, when you are in a country like the States, where all your neighbors don't speak the same language, and I want to ask you about this, that not just the States, I think even in India, where, you know, if you are in Mumbai or if you're living in Chennai and your neighbors don't speak Hindi and you are prominently a Hindi speaker, you don't have that command on English, what happens is there are two things which as a human being you think, and this has been something which I struggled initially a lot, and those two things are, one, the person in front of me is going to judge me for how I speak and what I speak. The second, I have a space, the space in which I have grown in the past 10 years, I need that space. If the person becomes too intruding in my space,
I might not like it. And what if they don't like it? Because our cultures are different, right? So I can speak from my experience. I lived in UK quite some time back, and I lived in a neighborhood where there were no other Indians, and I was still friends with my neighbors. Maybe you And had a very outgoing personality. What would you say about no, you people have who to make an effort. And What did you do? And just talk to people. Just say hello, how are you? Just show some care. Just invite them over for chai. I can tell you, you don't need to do anything more than invite them over for chai, invite them over for a game of Scrabble, or small little things. Nothing big. Nobody's expecting big things from anybody. But what happens like if you invite them 10 times and the other party doesn't invite you even once? You invite 10 people, one will become your friend. So you have to experiment. Just like a startup idea, you try 10 things and one thing works. You in your workspace, you try 10 things and one thing works. Here also, you try 10 people, it will work. But I also want to point out to something that you said, which is that I want my space. Now, if you want a social circle, if you want people in your life, you will have to invite them into your space and go into their space to an extent. That has to be there. So, you can't have, cake and eat it too kind of situation. If you want people, घर पे भी जब माँ बाप होते हैं तो थोड़ा तो प्रॉब्लम होता है, राइट? एडजस्टमेंट वाली बात आप कर रहे हैं ना कि आपकी थोड़ा माँ भी घर पे आ जाए तो आपके इंडिपेंडेंस में हनन पड़ता है और आपके लाइफ में इंट्रूशन होता है, ठीक है? तो नेबर्स के साथ तो उससे बहुत थोड़ा होता है, बहुत थोड़ा होता है। तो लेकिन वो जो आप बार्टर करेंगे अपनी इंडिपेंडेंस या अपनी सो कॉल्ड स्पेस, वही आपका कुशन भी बनेगी ना. दैट विल बी योर कुशन ऑल्सो. समडे यू फील लाइक टॉकिंग टू समबडी, यू नो दैट आई कैन जस्ट वॉक इनटू दिस पर्सन्स home And why is that? Generally, if you find men, they'll gel over sports and then they'll meet and it will be done. But with females, things go a little more deep. Like we tend to create bonds which we expect to stay long. And it's very, like, once you create a group of friends, it's very common across the board in all over the world. We get emotionally invested a lot. Yes. And once you create a group, then you want to stick to that group. And you don't want another newbie in that group for a long time. Like, it's very difficult for you to have another new person. I would say that's a college girl syndrome. It's still a thing, especially when you have a very you small... have to get out and you have to say it's okay. You can have your own circle of close friends. But it's nice to have a larger circle of people who you know and who are around you, who are living around you. Yeah. So, I mean, women do have little more complex relationships. We overthink, we overdo इसका क्या things. हमारी feminine energy से फिर से कुछ लेना देना है? बिल्कुल 100%. It's like Shiva and Shakti. शिव जी अपना बैठे हैं, जहाँ बैठना है वहाँ बैठे हैं, वो वहाँ से हिलते नहीं है. अब पार्वती जी उनको देवी उनसे ले के ये सारी दुनिया उन्होंने ही रची है. तो हमें जो भी मिल जाए हम देखते हैं अब इससे क्या कर सकते हैं. We want to create, we want to maximize, we want to have variety. I mean, most men would not like too much variety in anything. They can have the same food every day. They can have a lot of things same. I mean, we need a lot of things. Just like Devi creates this million varieties of lifeless and full of life world, Shiva just sits. श्रृंगार रस की जो खूबी है वो हमारे अंदर से निकल के वो मैनिफेस्ट होती है अगेन पूरे यूनिवर्स में. तो ये हमारी innate nature है. और दूसरा, spirituality always helps. It helps you understand a lot of things. It also helps you understand that people come in your life for a certain period of time, and it's okay if some people go away. Absolutely. They may go away for some natural reasons, like moving to another town or another country, moving to a new job, or for unnatural, unwanted reasons like having a death. But it's okay if some people have gone away, other set of people will walk in. Absolutely. Abhi, I think yesterday I heard Vidya Balan say this, that some people are there in your life for a reason, some people are there in your life for a season, and some people are there in your life for some great lifetime. Writer said it, but incidentally you are Yeah, I heard it and I was like, yeah, this is so absolutely true. Like, a lot of people who are not into reading, they're gonna listen to this and they're gonna believe in it. That's true. That's how
that's how thing is. And because you talked about writing, I want to ask कि आपने अपनी जो book author की थी, The Mouse Charmer, Digital Pioneer of India, why Mouse Charmer? मतलब what made you choose the title Mouse Charmer? So at that point in time, I was a lot into business innovation. So I used to study. I've also authored a series for CII on India Innovates. So this book spoke about the pioneering digital innovators of India. So it had stories of Flipkart, Shadi.com, Make My Trip, Zomato. The first stories of all these companies were featured in this book. So I saw a pattern of innovation that the digital companies were doing to flourish in India, and that's what I wanted to document. So that was the first book. It came almost 10 years ago. या एंड जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे यही लग रहा था कि एक तरफ आपकी ब्लॉगिंग है विच इज ऑल अबाउट हेरिटेज प्लेसेस, टेम्पल्स, सम ऑफ दोज कहते हैं ना वो एंशिएंट प्लेसेस इन इंडिया, और दूसरी तरफ आपकी ये बुक है which is about digital pioneers and innovation and how business innovation is changing India. Two completely varied topics. क्या common connection दिखता है इसमें? Not really. Innovation कहाँ होती है? Innovation intersection पे होती है. जब हम अपने experience को intersect करते हैं दूसरे के experience से, वहाँ पे नए ideas का जन्म होता है, उससे innovation होती है. That's exactly what all entrepreneurs do. And travel is a medium to make a lot of those intersections happen. So every time you travel, you find new ideas. You find, अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है, it's so simple. ये ऐसे भी हो सकता है. I remember my first time जब Bangkok गई थी and I saw those floating markets in the river and I said, how beautiful, why can't we use our water bodies like this? What a beautiful use. And then I saw that in Kashmir also they do something similar. So छोटी छोटी चीजों में, बड़ी बड़ी चीजों में हमें आइडियाज मिलते हैं, हमें एक दूसरे से लर्न करने को मिलता है. बुक्स में, रीडिंग में भी वही होता है. रीडिंग में भी आप किसी का एक्सपीरियंस ही पढ़ रहे हैं, चाहे वो फिक्शन है या नॉन फिक्शन है, बट किसी का एक्सपीरियंस पढ़ रहे हैं. अगर आप आज से 500 साल पुरानी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यू आर मेंटली गोइंग इनटू दैट टाइम एंड स्पेस जब वो लिखा गया था. वही हेरिटेज प्लेसेस में जब आप 1000 साल पुराने मंदिर के सामने खड़े होते हैं, यू आर टाइम ट्रैवलिंग टू द टाइम जब वो मंदिर बनाया गया था, या उस मंदिर ने जो देखा होगा उसके साथ आप टाइम ट्रैवल कर रहे हैं. तो ये सब मतलब फॉर मी दीज आर ऑल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज. मैं अभी भी इंडियन एक्सप्रेस के लिए कॉलम लिखती हूँ, मंथली कॉलम, एडिटोरियल कॉलम, विच इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ बिजनेस एंड कल्चर. तो ये एक बहुत, अगेन हमारे लिसनर्स के लिए एक बहुत ही इंट्रीगिंग टॉपिक होने वाला है कि बिजनेस और कल्चर जब इंटरसेक्ट करता है, क्या आप तब इनोवेशन देखते हो या हाउ डज इट ग्रो? एंड आई वुड लाइक पीपल टू कमेंट ऑन द वीडियोस कमेंट सेक्शन कि व्हाट डू यू गाइस थिंक, लाइक द culture and business intersection, has it impacted you ever in your journey? तो मैं जरूर सुनना चाहूंगी अपने व्यूअर्स से कि वो क्या सोचते हैं. अनुराधा, आपकी जो डीप अप्रिशिएशन रही है इंडियन कल्चर और हेरिटेज को लेकर, वो आपके वर्क में दिखता है. जैसे कि अभी भी आपने बताया कि जो बुक्स थी उसके पीछे का भी जो थॉट प्रोसेस था वो वैसा था. तो क्या इंस्पायर करता है आपको इतना ज्यादा इंडियन टेम्पल्स, इंडियन स्क्रिप्चर्स को फोकस में रखने में अपने ट्रैवल में? मेरे लिए ये सब लर्निंग जर्नी है. पर्सनली एक लर्निंग जर्नी है, और जो मैंने इंडिया में चल चल के या किताबें पढ़ पढ़ के सीखा, वो मुझे लगता है बहुत लोगों को पता होना चाहिए. क्योंकि हमारी जो जनरेशन थी, जो 70s बॉर्न है, तो वो हम ना कल्चर से बहुत, अपनी जड़ों से बहुत कटे हुए थे. क्योंकि जो इंडिपेंडेंस के इमीडिएट बाद वाली जनरेशन थी, जिसको मैं अपने मेरे पेरेंट्स की जनरेशन बोल सकती हूँ, दे वर टू बिजी रोटी कपड़ा मकान को मैनेज करने में. तो उससे क्या हुआ कि कल्चर जो था वो एकदम ही आउट ऑफ द विंडो चला गया और हमारी जड़ें कटने लगी. स्पेशली जो हमारा आध्यात्मिक स्ट्रॉन्ग होल्ड था कि आपके जीवन में आध्यात्म आपको हमेशा पकड़ के रखेगा, हमेशा आपके पास एक ऐसा कुशन रहेगा कि उसके बाद आपको किसी और कुशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. तो वो हमारे से छीन लिया गया एक तरह से. मतलब हमारी इतनी सुंदर, इतनी वेल रिसर्च्ड, इतनी बड़ी लाइब्रेरी ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज है, और आज मुझे बहुत दुख होता है कि हमें तो उनके नाम भी नहीं पता है. हाँ, मैंने अभी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की है, तो मैं थोड़ा समझ रही हूँ कि ये पूरा प्रोसेस ऑफ गेटिंग डीपर विद इन योरसेल्फ है, वो कैसे स्टार्ट होता है. और हमारे स्क्रिप्चर्स में बहुत सारी बातें जो लिखी हुई है वो कितनी, आपको लगता है बहुत सिंपल है, बट बहुत ज्यादा एनकोडेड है वो.
जिनको कि आपको डिकोड करना होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन? तो बहुत कुछ है, हमारे पूर्वज हमारे लिए इतना कुछ छोड़ के गए हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा दायित्व है कि हम उसको संभाल के रखें और अगली जनरेशन्स को पास करें। हमारे यहाँ जो पूरा एक जिसको हम पितृ बोलते हैं, हमारे एंसेस्टर्स, और उनकी हमारी साल में हमारा एक पितृपक्ष होता है, वो इसीलिए होता है। या हमारे घर की आप देखिए कोई भी पूजा होती है, कोई भी अनुष्ठान होता है, उसमें हम पितरों को याद करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हम एक कड़ी में एक लिंक है, हमने जो पीछे से लिया वो हमें आगे देना है। वो मेरे पास एक टेम्परेरीली 50-60 साल 70 साल जितना भी मेरा जीवन है उतना समय मेरे पास है। उससे पहले वो किसी के पास था, उसके बाद वो किसी के पास जाएगा, किसी के पास होगा। मैं एक कड़ी हूँ इसमें। तो इसीलिए हम पितरों को कभी नहीं भूलते, क्योंकि आज हमारे पास जो भी है, राइट फ्रॉम आवर डीएनए टू आवर संस्कार to even material wealth that we have is what we have inherited from our ancestors. तो हमारा ये लिंक कहीं टूट गया था अधिकतर भारतीयों का। वैसे तो दुनिया में बहुत लोगों का छूटा है, लेकिन हम इंडियन लोगों की बात करेंगे तो कहीं हमारा ये लिंक छूट गया था। तो मैं और मेरे जैसे बहुत से लोग हम प्रयास कर रहे हैं कि हम अपनी जड़ों से फिर से जुड़ जाएं, क्योंकि जड़ें जितनी गहरी होती हैं वृक्ष उतना ही फलता फूलता है। और कोई भी वृक्ष बिना जड़ों के फल फूल नहीं सकता। फिर आप छोटे मोटे पौधे ही रह जाएंगे जिसको एक हवा का झोंका उठा के ले जाएगा। लेकिन जब आपकी जड़ें बहुत गहरी होंगी, फिर आंधी तूफान आएंगे, आपके 2-4 पत्ते गिर सकते हैं, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले। अपनी जड़ों के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जड़ों से जुड़े नॉट जस्ट जानना, उन्हें प्रैक्टिस में लाना, अपने कल्चर के साथ जीना। जैसे आपने अभी थोड़ा टाइम पहले कुछ बोला कि लोग मुझे जज करेंगे। ये डर क्यों है कि लोग मुझे जज करेंगे? क्योंकि आप अपने देश में नहीं है। अब आप कैसे कहीं भी हो। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताती हूँ। आई डोंट रिमेम्बर कि मैं यूएस में थी या यूके में थी। तो मेरे एक कलीग थे जिनकी पत्नी शादी करके सीधा वहाँ पहुंच गई और उनको अंग्रेजी नहीं आती थी। अच्छा, मेरे साथ वो बहुत अच्छे से बात करती थी क्योंकि हम हिंदी में बात कर लेते थे। तो एक बार किसी से मिलने की बात हुई तो बहुत घबरा गई कि यार मैं कैसे करूंगी। मैंने बोला तुम क्यों घबरा रही हो? बोला मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती बोलनी। तो मैंने उससे बोला कि उसको हिंदी नहीं आती, उसको शर्म आती है क्या? तो मैंने बोला अगर तुम्हें हिंदी नहीं आती तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी अंग्रेजी टूटी फूटी है, दैट इज फाइन, तुम सीख लोगे। These are not at all big deals. I'm not a South Indian. I live in Bangalore. I picked up Kannada over a period of time. काम चलाओ, not 100%. I can't read the literature of Kannada. लेकिन आपको पिक करना पड़ा ना। देखिए, उसको तुम इस तरह मत देखो कि पिक करना पड़ा। मैं ये बोलती हूँ, मैं जब इस देश में रह रही हूँ या इस स्टेट में रह रही हूँ, तो ये मेरा उसको रेस्पेक्ट देने का तरीका है। हम अपने माइंडसेट में अगर इसको लेंगे मुझे करना पड़ा, तो वो फिर मुझे मेरी जान पे आ जाएगा और मुझे लगेगा मैं तो टॉर्चर होके कर रही हूँ। जब मैं ये कहूंगी कि भाई मैं तुम्हारी धरती पे आके रह रही हूँ, तुमने मुझे एक्सेप्ट किया है, ये मेरा तुम्हें रिस्पेक्ट देने का या तुम्हारे साथ एक होने का एक तरीका है, आपको वो फिर करना पड़ा नहीं लगेगा। मुझे लगता है मैम ये जो डिस्कशन है ना, ये इतना डीप है कि हम इसकी तरफ अगर जाएंगे तो हम एक अनदर पॉडकास्ट हम शूट कर सकते हैं इस पे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ओपिनियंस हैं। और मैं ये बोलती हूँ कि आप कभी अपने आप को ये मत समझो कि मुझे करना पड़ रहा है। आप ये सोचो कि यार आप विलिंगली बोलो कि मैं जब यहाँ रह रही हूँ, मैं इस जगह को अच्छे से जानना चाहती हूँ, मैं सीखूंगी। हाँ, वही है कि आप जो बोल रहे हो वो बहुत पॉजिटिव तरीका है उस चीज को इम्ब्रेस करने का, कि आप कैसे अपने आप को इम्प्रेस कर सकते हो। और हो सकता है कि अगर आपको नहीं चेंज करना है तो फिर आप अपने गांव वापस जाके रहिए वहाँ। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि है ना। लेकिन हाँ, लेकिन एक्चुअल में जब इंसान रह रहा होता है तो वो चेंज भी नहीं चाहता है और वो एक्सेप्टेंस भी चाहता है। आप समझ रहे हो मैं क्या मैं वही बोल रही हूँ ना, यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग योरसेल्फ इन द सेंस, नॉट यू एज इन दिस आइडिया इज कॉन्ट्रडिक्टिंग। हम चाहते हैं सामने वाला तो मुझे एक्सेप्ट करे, लेकिन मैं कुछ ना करूँ एक्सेप्ट करवाने के लिए। हाँ, क्योंकि एक एज के बाद जो अगेन ये एक जो मैं आपको आइडिया शेयर कर रही हूँ, ये बहुत बार डिस्कस्ड आइडिया है। तो जो एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है ना कि आप एक एज में होते हो, इन योर अर्ली 20s, यू कैन मोल्ड योरसेल्फ, यू कैन चेंज योरसेल्फ, यू एक्सेप्ट चेंज, यू लाइक चेंज, यू वांट टू बी समथिंग, एंड वो ना बहुत
आप उसमें मोल्डिंग में आप वो बनते चले जाते हो, इवोल्यूशन होता चला जाता है। फिर एक एज आती है 30-35 की, और फिर आती है 40 की, और फिर 40-45 की, जहां आप धीरे धीरे अपने आइडियोलॉजीज, अपने बिलीव्स, अपने थॉट प्रोसेस के साथ रिजिड होते चले जाते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सही है, मैं ये कह रही हूँ कि ये पैटर्न है जो देखने के लिए मिला है, और जिसके ऊपर कई बार थेरेपिस्ट बोलते हैं कि लूजन योरसेल्फ आउट, बात करो, आगे बढ़ो। तो देखिए, ये बात सही है कि जितने बचपन में होते हैं, हमारे यहाँ भी गुरु कहा करते थे कि मुझे 7 साल से पहले बच्चा दे दो, हाँ, तो मैं उसको मोल्ड कर पाऊंगा, उसके मोल्ड बाद कर नहीं कर पाऊंगा। पाऊंगा। वो ये बात सही है। इसीलिए आज की डेट में ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा बोलना, लेकिन इसीलिए पहले शादियां जल्दी होती थी क्योंकि आप एक दूसरे के साथ मोल्ड हो जाते थे। हाँ, मैं काफी बिलीव करती हूँ इस चीज में तो कि जब क्यों आपकी होती थी। शादी बहुत लेट होती है तो आप एक दूसरे के लिए एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो क्योंकि जाता है। आप दोनों रिजिड हो चुके होते हैं। वो सही है, लेकिन आप ये भी देखिए कि जितनी माइग्रेशंस होती हैं जिसमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं, वो भी तो आपके अर्ली करियर में ही ज्यादा होती हैं। हाँ, आजकल तो दोनों ही देखने के लिए मिल रहा है। लाइक लोग 30s के बाद भी, क्योंकि लोग ओपन हो गए हैं कि दे वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। सोशल मीडिया और इंटरनेट की वजह से लोगों को इतनी सारी चीजें पता लगने लगी हैं कि लोग 40 में भी मूव करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आफ्टर अ गुड पार्ट ऑफ लाइफ स्पेंट इन अ पर्टिकुलर प्लेस। मतलब 40 साल मैंने एक जगह बिताया, बट अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी है तो मैं देखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे एक्सप्लोर करना है, तो वहां मैं रेडी हूँ चेंज के लिए। बट व्हेन इट कम्स टू माय कोर कैपेबिलिटीज एंड फाइंडिंग आउट कि अच्छा यहाँ जाके मेरे को ये सारी चीजें नहीं करनी है, तो हम थोड़ा वहां पे आ जाता है वो वाला टर्म कि मुझे करना पड़ा। मैं आपको बताती हूँ कि हर चीज ना, जब हम किसी से कुछ लेते हैं तो उसको उतना वापस देना भी पड़ता है, किसी भी चीज से, किसी भी इंसान से, किसी भी सिचुएशन से। तो हम अगर उसको ये मान के चलें कि लेट्स से आप एक नए शहर या नई देश में जा रहे हैं आप, और वहां जाके अगर आप चाहते हैं कि वो लोग आपको वेलकम करें, एक्सेप्ट करें, तो आपको भी उनको कुछ देना होगा कि हम एक ग्रैटिट्यूड, एक साइन कि हम भी आपका एक हिस्सा बनना चाहते हैं। मुझे लगता है छोटी छोटी समझ की इश्यूज हैं, और बहुत सारी चीजें, मेरा ऐसा मानना है कि ये मीडिया क्रिएटिव नैरेटिव है जो हमारे दिमाग में भर दिया गया है कि हर आदमी तुम्हें तंग करने को बैठा है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, है ना, ऐसा नहीं या, है। हाँ, या हर कोई तुम्हें परेशान करने की सोच रहा है, चाहे तुम्हारा बॉस है, चाहे तुम्हारा कोई भी है। प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जितना आप उससे परेशान हो, वो भी उतना ही आपसे परेशान होगा। हाँ, और फेमिनिज्म का भी जो डेफिनेशन है वो बहुत ही डिस्टॉर्टेड तरीके से मार्केट में है। मतलब जो अगेन वही मीडिया की वजह से, क्योंकि फेमिनिज्म इज नॉट अबाउट हेटिंग मेन, इट्स अबाउट फाइंडिंग द इक्वालिटी इन द वर्क स्पेस, मेजरली वर्क स्पेस। कि भाई अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ या अगर मैं पीरियड्स में हूँ, मेरी बॉडी में चीजें चल रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं थ्रू आउट परफॉर्म नहीं कर सकती। वो उस टाइम पे मैं परफॉर्म नहीं कर सकती, लेकिन एक पॉइंट ऑफ और एंगल आपको देती हूँ। हम एक एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं 1 साल प्रेग्नेंट हूँ, तो मुझे आप पूरा पैसा दीजिए और काम तो नहीं किया, लेकिन मुझे 6 महीने की मैटरनिटी लीव चाहिए, जो भी है, या पीरियड्स पे मैं नहीं आऊंगी क्योंकि वो अभी बहुत ही फ्लूइड स्टेट में है शायद। लेकिन अगर आप इसी को रिवर्स करके एक छोटे बिजनेस के एंगल से सोचें कि आप अगर एक बिजनेस ओनर हैं छोटे बिजनेस के, और आपको किसी को हायर करना है, टाइट बजट में है, विल यू हायर समबडी हु इज प्रेग्नेंट? I will. I have hired. मैं क्योंकि एक नॉन प्रॉफिट चलाती हूँ, तो I have hired. नहीं, ऐसे काम के लिए जो काम नहीं करेगा और आपको पैसा देना होगा, वो पूरे टाइम काम नहीं कर रहा है। वो आप, क्योंकि जो छोटे बिजनेसेस हैं उनकी मैटरनिटी लीव पॉलिसी इतनी ज्यादा एक्सटेंसिव नहीं होती है। द एक्सटेंसिव मैटरनिटी पॉलिसी इज ओनली गिवन इन बिग कंपनीज जो अफोर्ड कर सकती हैं। That's what I'm saying. When you think from a business perspective, जिनके पास बजट नहीं है, उनको प्रोडक्टिविटी भी चाहिए, उनको सब कुछ चाहिए, how do they equate a person who's going to work 12 months and give you business benefit vis-a-vis a person who will probably be there for 2-3 months? वहां पर भी वो अनमने मन से होगा क्योंकि उसकी फिजिकल सिचुएशन ऐसी है। ठीक है, आपका पॉइंट वैलिड है कि मतलब आप क्या सोचोगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये बोल रही हूँ सिर्फ उस एंगल से भी सोचो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो आप कह रहे हैं वो गलत है, वो सही है, ठीक है, लेकिन आपको दूसरे के एंगल से भी सोचना पड़ेगा कि मेरी इस सिचुएशन से किसी को नुकसान हो रहा है, या कोई उसका, बिकॉज आई एम नॉट वर्किंग, somebody else has to work double the time। हाँ, मैं ये बात बिल्कुल मानती हूँ। जब हम अपने अधिकार की बात करते हैं
तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि मेरा वो अधिकार की कॉस्ट जो है वो कोई और बियर कर रहा है। लेकिन वो कांस्टेंट नहीं है, वो टेम्पररी है। वो शायद टेम्परेरी 3 फॉर एक महीने का। साल के लिए मे बी, हाँ, आई वुड से मतलब लिटरल एक साल समझ लीजिए आप, उसमें लग हाँ, जाता चलिए है। 1 साल समझ लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एज़ वुमेन जिस तरीके की हमारी मल्टी फेसेटेड कैपेबिलिटीज़ हैं, मैंने जनरली देखा है कि जो फेमिनिन एनर्जी है, उसमें एक चीज़ होती है दैट इज़ मल्टीटास्किंग। ये बहुत कॉमन अक्रॉस द बोर्ड है। तो हम एब्सोल्युटली, तो हम एब्सोल्युटली। कर सकते हैं ये, और हम ही भले वो कर एक सकते हैं। हम ये कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर उस एस्पेक्ट से मैं देखूँ तो कई बार आप वो 1 साल आपने अपने आप को पीछे कर लिया, बट यू विल बी एबल टू गिव देम डबल एंड ट्रिपल बिकॉज़ ऑफ दैट कैपेबिलिटी इन द अपकमिंग इयर्स। एंड अगेन मुझे लगता है कि हम थोड़ा-सा टॉपिक से डाइग्रेस हो रहे हैं, तो मैं एक बार वापस टॉपिक। मेरा सिर्फ पॉइंट इतना है कि आप हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू के बजाय आप सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में भी सोचेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और मुझे लगता है कि हर चीज कई बार ना हम डिबेट मोड में चले जाते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। समटाइम्स वी हैव टू सिट डाउन एंड लुक इट फ्रॉम द प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड, कि हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कि क्या कर सकते हैं कि हम इसको सॉल्व करें। मैं ये जानना चाहती थी कि आपके बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस मैंने सुने हैं अराउंड देवी एंड व्हाई यू आर ड्रॉन मेजरली टुवर्ड्स देवी टेम्पल्स एंड फेमिनिन टेम्पल्स मेजरली। और आपने काफी ज्यादा लाइक फैसिनेटिंग एस्पेक्ट्स शेयर किया है अराउंड tantra and feminine energy and Devi temple in some of the earlier podcast. Can you start a little bit or talk to us a little bit about the significance of that energy you find in these temples and significance of that energy in Indian spirituality? उसके लिए मेरी एक पुस्तक है, देवी टेम्पल्स ऑफ इंडिया, हाँ, और एक पुस्तक है नवरात्रि, हाँ, हाउ नवरात्रि सेलिब्रेटेड, एंड लॉट ऑफ इट इज आंसर्ड इन दीज टू बुक्स. बट टू टेल यू इन अ nutshell, I started reading Devi texts because I was reading scriptures, and I started reading, and once I started reading in, they just drew me in. And then I used to visit Devi temples earlier also, but after that they became my focus. So I try and visit the Gram Devi, Nagar Devi, wherever I visit. I try to visit those temples. And what I have found is that my personality became far more feminine after this change happened. You know? how would you define that when you say more feminine? How do you define There that? are a lot of things. I don't know if I should put that in the public domain or not, but on an outward plane, I don't remember wearing sarees ever. Now I wear them so often, and I willingly do that. You know, I never used to wear any jewelry. Now I enjoy wearing it. So this is on the face of it. And there are a lot of other things. I've started working with a lot of women, and before that my primary circle of friends used to be male friends, but now I'm more friendly with women. And I'm also realizing that, you know, the feminine energy is, I'm realizing the difference between the male energy and the feminine energy, and that feminine energy is my natural state. For a long time I was trying to do a lot of things that men do, or traditionally men are expected to do, but now I'm happy to be in my natural state. And I've checked it with a lot of women. Eventually everybody feels happier doing what women were traditionally expected to do, or traditionally they did. So ले दे के आपका एक natural state जहाँ होता है, वहाँ पर आप effortless हो जाते हो. You become you. हाँ, तो वहाँ आपको कुछ भी ऐसे नहीं लगता कि मुझे करना पड़ रहा है. वो आपका नेचुरल स्टेट में आप फ्लो करते हैं. और हमें ऐसा लगता है कि बहुत बार अगेन मीडिया नैरेटिव इज कि अरे तुम पे तो सदियों से जुल्म हो रहा है, तो तुम ऐसे हो, ये हो, वो हो. अब जितने मैं टेक्स्ट पढ़ रही हूँ या जितनी मेरी समझ है एट दिस पॉइंट इन टाइम, आई थिंक all these roles were built after a lot of research, testing, data, very deep understanding of our innate natures. बट ये चीज आज की डेट में मैं कितने लोगों को समझा पाऊंगी या कितने लोग समझ पाएंगे, दैट्स अ बिग क्वेश्चन. हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि नरेटिव बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है टू द नरेटिव दैट हैज बीन स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड. Right. तो एंड दिस इज बाय द वे ट्रू अक्रॉस द वर्ल्ड. हाँ, it is absolutely true across the world. And जो एक चीज आपने अभी बोली कि एक feminine feeling आ गई आपको, and you started embodying that in yourself. 2 places थे आपके ब्लॉग पे जो मेरे लिए बहुत स्पेशल थे, and those were उच्चैठ भगवती and अहिल्या स्थान.
एंड बिकॉज मैं खुद मिथिला से बिलोंग करती हूँ, तो मैं हमारा लाइक इट वाज अ रिचुअल फॉर अस कि हम जब भी नानी के यहाँ दरभंगा जाते थे तो हम उच्चैठ भगवती के दर्शन करने के लिए जरूर जाते थे, या कोई मन्नत होती थी तो आप जाते हो. एंड इट्स अ वेरी तांत्रिक प्लेस, लाइक इट्स अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ सच प्रैक्टिसेस हैपन. एंड अभी भी तंत्र कंप्लीटली अंडरस्टूड नहीं है. इट्स स्टिल सीन एज एन ऑकल्ट प्रैक्टिस दैन अ way to connect yourself with the आदिशक्ति. आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है उच्चैठ भगवती का? और अहिल्या स्थान में तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होती है वहाँ का. I loved being at अहिल्या स्थान बिकॉज एक तो वो बहुत छोटी सी जगह है, दूसरा वहाँ पर कोई नहीं था, तो इट वॉज लाइक I we could Peaceful. feel the temple. I did see a couple of people who had been cured after a mannat there. So वो मन्नत पूरी करने के लिए आए थे. So वो एक बहुत अच्छा experience था. Very interestingly, somebody was offering, I think, bangan there because उनका कोई skin का disease ठीक हो गया था. They had come all the way from Bombay to do that. So that tells you the faith and the power of the place. But that was a very powerful place. उच्चैठ भगवती, I wish that temple was cleaned. And ये हमारे बहुत मंदिरों में प्रॉब्लम है कि मंदिर साफ नहीं होते हैं तो उनकी ऊर्जा जो है वो अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि हमारे सामान्य धर्म में एक जो सबसे बड़ा धर्म है वो है शौच, सफाई, क्लीनलीनेस. अहिल्या स्थान बहुत छोटी सी जगह है, उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन इट वाज पिक एंड स्पैन. मतलब आप जमीन पे मिट्टी का फर्श था, वहाँ पे कोई फर्श भी नहीं था. हम वहाँ जाके वहीं बैठ के ध्यान लगाया, मजा आया. लेकिन उच्चैठ भगवती में पैर रखने की जगह नहीं थी बिकॉज ऑफ दैट क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं किया हुआ है, और या मंदिर को मेंटेन नहीं किया. आप जब इतने टेम्पल्स घूमते हो और जब आप इस तरीके की सिचुएशन देखते हो, आपको क्या लगता है कि मतलब एक तो हो गया कि आप क्लीन करो उसको, और दूसरा होता है कि इवेंचुअली अगर हमने क्लीन नहीं किया तो इन टेम्पल्स की जो एनर्जी है वो क्या ओवर पीरियड ऑफ टाइम डिसिपेट हो जाएगी? हो जाएगी ना. देखिए, जब आपका मंदिर में मन जाके प्रसन्न होना चाहिए, जबकि आपका पूरा यही रहता है कि यार अब पैर के नीचे क्या आया क्या नहीं आया. प्रसाद आ रहा होता है, चढ़े हुए फूल आ रहे होते हैं, और लोग धक्का मुक्की. आई रिमेम्बर जो मूर्ति है वहां पर, उस पे बहुत सारे, मेरे अभी भी मुझे विजुअल याद है, बहुत सारे लाल रंग के गुड़हल के फूल थे. मूर्ति भी दिखाई नहीं दे रही है. तो मुझे लगा कि उस मंदिर के जो भी प्रशासन के लोग हैं उनको इस पे ध्यान देना चाहिए. वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मंदिर है. वहाँ 10 महाविद्या में से एक महाविद्या का स्वरूप है. हाँ, छिन्नमस्ता का स्वरूप है वो. हाँ, और पूजा भी जहाँ वहाँ पे हो रही थी, मुझे नहीं पता, क्योंकि लोग वहाँ जाके मूर्ति को छू भी रहे हैं. उतना पास मूर्ति के जाना चाहिए, अगर वो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है तो उतना पास सबको मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सब लोग गर्भगृह में ही लोग भरे हुए थे. एटलीस्ट मैं जिस दिन गई, और वो कोई नवरात्रि का समय नहीं था, कुछ नहीं था, क्योंकि उनकी इतनी ज्यादा मान्यता है. और इंडिया में ना एक वो है कि हमने छू लिया, भगवान को छू के आए. उस मामले में मुझे दक्षिण के मंदिर बहुत अच्छे लगते हैं, जहाँ आप गर्भगृह में जा ही नहीं सकते. तो उनके गर्भगृह इतने सुंदर लगते हैं श्रृंगार करके. तो उच्चैठ भगवती में तो दर्शन हुए ना हुए एक बराबर है, क्योंकि लोगों के इतने हाथ वहाँ थे. और पानी फेंक रहे हैं, मतलब लिटरली पानी फेंक रहे हैं उसके ऊपर. तो अगर आपको कोई वहाँ जानता है तो उन्हें प्लीज कहिए कि उस मंदिर का, एंड आई एम श्योर वहाँ उस मंदिर के पास पैसे की कमी नहीं है, चढ़ावा आता ही होगा खूब सारा, और मंदिर के नाम पे मुझे नहीं लगता किसी के पास भी पैसों की कमी होती है. तो लेकिन इच्छा की कमी है. हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मुझे वो नॉर्थ ईस्ट के बेल्ट की भी प्रॉब्लम लगती है, क्योंकि अगर आप अगर वहाँ पे देवघर जाएंगे, या फिर अगर आप वहाँ पे तारापीठ जाएंगे जो कि उसी बेल्ट में है, आपको सेम प्रॉब्लम दिखेगी वहाँ पे भी. देवघर में जो गर्भगृह है जहाँ बाबा का शिवलिंग है, एवरीबडी जस्ट वांट्स टू टच द शिवलिंग. मतलब इतना ज्यादा वो छूने की प्रथा है कि अभी कुछ सालों पहले, मतलब कुछ सालों नहीं, एक्चुअली काफी सालों पहले तो ये न्यूज में था कि वो शिवलिंग घस गया है. मतलब बेसिकली आपने इतनी बार उसको छुआ है कि एक्चुअल शिवलिंग के ऊपर उन्होंने कैप लगाया है ताकि वो टच ना हो सके, मतलब वो बिल्कुल विलुप्त ना हो जाए. और ऐसी न्यूज आती थी कि एक टाइम आएगा व्हेन नोबडी विल बी एबल टू सी द शिवलिंग. तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. एंड आई होप कि जब अगर कोई बिहार से इस पॉडकास्ट को सुनेगा तो शायद वो इसके टुवर्ड्स कुछ ना कुछ करे. आई होप सो, बिकॉज वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मंदिर है, शक्तिपीठ है, तो शक्ति स्थल है, और शक्ति को सबसे पहले तो क्लीनलीनेस चाहिए.
या देवता को आप कैसे उस फॉर्म में रख सकते हैं, बाहर भी, मंदिर के बाहर भी, नॉट जस्ट मंदिर के बाहर भी इतनी खिचपिच, और आपने इतनी लिखा है, खिचपिच। हाँ आपने जी। लिखा है अपने ब्लॉग में भी कि जो ब्लॉग है आपका उसमें बहुत क्लियरली लिखा है कि जगह नहीं थी चलने की, चारों तरफ लोग बहुत सारी चीजें सेल कर रहे थे, तो क्लीन पाथ नहीं बना हुआ है कि आप मंदिर में एंटर कर सकें। तो आई होप कि इवन वो चीज गर्भगृह के बाहर भी जैसे जनकपुर गए थे हम उसी ट्रिप पे, जनकपुर मंदिर इतना सुंदर, इतना साफ, इतना बढ़िया, मतलब आनंद आता है वहां जाके। तो जहां भी हो, अब जैसे उस मंदिर में भी अयोध्या के बहुत मंदिरों की तरह एक राम धुन लोग गाते रहते हैं, आप जाते हैं, हम भी बैठ के हमने वहां थोड़ी देर गाया, मजा आया, आनंद आया। तो वो एक अनुभव हम साथ लेकर आते हैं। तो वो अनुभव अब छिन्नमस्ता के नाम पे, वो मतलब छिन्नमस्ता के बहुत मंदिर नहीं है, तो मुझे लगता है कि उसके लिए कुछ किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल किया जाना चाहिए। और आपके जैसे यंग बिहारीज को एक मंदिर प्रोजेक्ट क्रिएट करके सारे मंदिर साफ करवाने चाहिए। आप जैन मंदिर देखिए, पावापुरी जैन मंदिर गई थी, इतना क्लीन, इतना सुंदर। मैं आपकी बात को, क्योंकि अब आपने ये चीज़ बोली है तो मेरे दिमाग में ये बात रहेगी कि हम इसको कैसे और बेटर कर सकते हैं, और अगर हम कुछ इसके टुवर्ड्स कर पाए तो हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप भी नहीं चाहते हो कि वो जो उस जगह की जो एनर्जी है वो डिसिपेट हो जाए, राइट। लास्ट फ्यू क्वेश्चन, क्योंकि होता क्या है कि अभी जो यंगर जनरेशन वहां जाएगी, जब उनको वहां कुछ फील ही नहीं होगा तो वो जाना छोड़ देगी। हाँ मतलब बिलीफ तो आप कहते हैं कि आपको फील आनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इस उच्चैठ भगवती के अलावा आप इतने सारे देवी टेम्पल्स गए हैं, कोई ऐसा मेमोरेबल एक्सपीरियंस या स्टोरी जहां आपको पावर और प्रेजेंस बहुत स्ट्रांगली फील हुआ है? हर शक्तिपीठ में जितने शक्तिपीठ में, अभी सारे तो नहीं देखे, लेकिन हर शक्तिपीठ में आपको पावर बहुत फील होती है। कोल्हापुर महालक्ष्मी बहुत आनंद आता है जाने में। बाकी कौन सी जगह, कांची कामाक्षी मेरा बहुत फेवरेट टेम्पल है, वहाँ पर मुझे बहुत मज़ा आता है। और वो टेम्पल ये दोनों टेम्पल खूब बड़े बड़े हैं, बहुत लोग आते हैं, बट फिर भी आप एक शांति से एक कोने में बैठ के अपनी चैंटिंग कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो ये 2-3 टेम्पल हैं जो मैं कई बार गई हूँ और मुझे जाने में आनंद आता है। और जब आप इन टेम्पल्स पे जाते हो, या बहुत सारे जो यूनेस्को हेरिटेज साइट्स भी हैं वहाँ जाते हो, बहुत सारे जगह बहुत ईजिली एक्सेसिबल नहीं है, मतलब दे आर ईदर इन द रिमोट एरियाज और वेरी लेस ट्रैवल्ड एरियाज। तो सबसे पहली चीज कि व्हाट ड्रॉज यू टू दोज प्लेसेस जहाँ पे कि पहुँच पाना ही मुश्किल है, और दूसरा ये कि हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर सच जर्नीज बोथ मेंटली एंड फिजिकली? सो आज की डेट में तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ जाना बहुत मुश्किल है। I think the toughest trip I would have done was Spiti Valley trip, जो I think 17 days का trip था, शिमला टू मनाली via Spiti Valley via कुंजुम पास and all, जिसमें कि हम दिन में 50 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चल पाते थे। तो वो एक आई थिंक थोड़ा रिमोट था, और अब तो वो भी रिमोट नहीं रहा, सम फिल्म्स हैव प्रमोटेड। सो अभी कुछ भी इंडिया में ऐसा नहीं बचा जिसको आप बोल सकते हैं कि एकदम ही मतलब आपके पर्सनल लेवल पे हो सकता है कि आपने वो जगह नहीं सुनी तो आपको वो एग्जॉटिक लगे, बट एनी प्लेस यू गो यू फाइंड इनफ पीपल देयर। ओके, So I read a lot. So मेरा preparation mental ज़्यादा होता है. I read a lot before going to a destination. I prepare my notes. I have a long list of things I want to see, and I mentally think कि इसमें से 50% भी हो गया तो it's a successful trip. कभी 50% होता है, कभी 75 होता है, कभी 110 भी हो जाता है. But 2-4 चीज़ें हमेशा ऐसी मिलती हैं जो पहले पता नहीं, तो वो देखने में मज़ा आता है। और थोड़ा सा टाइम, लाइक I said, थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड टाइम हर ट्रिप पे छोड़ दो, ताकि डेस्टिनेशन आपको जो बताना चाहता है वो बता पाए। अच्छा, तो आप थोड़ा सा वो सरप्राइज छोड़ते हैं और मतलब लेट इट, उसको फ्लो करने देते हैं जैसे वो चल रहा है। वन ऑफ द थिंग्स दैट आई डू वेरी ऑफन इज गो फॉर अर्ली मॉर्निंग वॉक्स। जब जगह के लोग जस्ट दे आर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, जैसे मैं कहती हूँ तब तक लोगों ने मुखौटे नहीं पहने होते हैं जब सुबह सुबह लोग जा रहे हैं। दैट्स अ वेरी प्योर टाइम टू एब्जॉर्ब अ डेस्टिनेशन। बहुत ही प्यारी बात कही आपने कि उस समय लोग नींद से जगते हैं तो दे आर इन देयर ओन ट्रू सेल्फ। आपने बोला कि आप बहुत ज़्यादा रीड करती हैं बिफोर यू गो, एंड रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इंडियन स्क्रिप्चर्स, ये आपका एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट रहा है आपकी जर्नी का और आपके ट्रैवल्स का। आप लाइक सबसे बड़ी बात है कि
to our audience आप क्या एडवाइस करेंगे? How can they start उस पे भी getting मेरी into एक reading it? किताब उस पे भी मेरी एक किताब है, हाउ टू रीड इंडियन स्क्रिप्चर्स, Okay. in which I have addressed all the mental blocks that you have for reading Indian scriptures. And क्या मुझे ये दोनों संस्कृत की आनी चाहिए, क्या मुझे एक गुरु चाहिए, क्या मैं खुद से पढ़ सकता हूँ, इतने सारे हैं, कौन सा पढ़ूं, ये सारे मेंटल ब्लॉक्स विद सम रीडिंग गाइड्स इन अ वर्कशॉप workbook mode. There's a book called How to Read Indian Scriptures, which is an e-book at the moment, but it's available worldwide. Anybody can download and read. and it's available worldwide on Amazon. e-commerce on Amazon. Okay, good. Okay. तो लोग वो पढ़ के ये डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे वो इंडियन स्क्रिप्चर्स के टुवर्ड्स और अपना इंक्लिनेशन बढ़ा हेल्प्स यू सकते हैं. गाइड कि आप जब पढ़ने लगेंगे कैसे आप एक पेज से पढ़ना शुरू कीजिए, एक श्लोक से पढ़ना शुरू कीजिए, किस लैंग्वेज में पढ़िए, पूरा एक लिस्ट दिया है कहाँ से कौन से स्क्रिप्चर्स से आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं. So far the feedback on this is that it has helped a lot of people start their journey of reading original Indian scriptures. मुझे लगता है कि मैं अब नेक्स्ट सवाल आपसे यही पूछूंगी कि आपके पास कोई ऐसी किताब भी है जो ये बताती हो ट्रैवलर्स को जो इंटरेस्टेड हैं, यू नो, एक्सप्लोरिंग द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ फेमिनिन एनर्जी थ्रू विजिट ऑफ देवी टेम्पल्स एंड अदर सीक्रेट साइट्स इन इंडिया. देवी टेम्पल्स ऑफ इंडिया मेरी ही किताब है. उस किताब में do you talk about like how they can start on a journey if they want to It visit talks, these? it has my journey of visiting all those temples. So उसमें आपको बहुत सारे क्लूज मिल जाएंगे. और यू नो जब आप ट्रैवल के बारे में पर्टिकुलरली सोचते हो तो कल्चरली और हिस्टोरिकली क्या इम्पैक्ट करता है आपको ज्यादा किसी भी पर्टिकुलर साइट को लेकर के, उसका कल्चर या उसकी हिस्ट्री? कल्चर एंड हिस्ट्री आर इंटरट्वाइंड. कल्चर हिस्टोरिसिटी से ही आता है और हिस्ट्री में भी कल्चर होता है, सो दे आर रियली इंटरट्वाइंड. उनको आप अलग करके नहीं देख सकते. और जब आप उसको मॉडर्न मीडिया और मॉडर्न टेक्नोलॉजी और डिजिटल मीडिया के लेंस से देखती हैं फिर क्या लगता है? See, आज की डेट में डिजिटल मीडिया इज अ प्लेटफॉर्म. या देयर इज अ कल्चर ऑन डिजिटल एज वेल, बट व्हेन यू लुक एट द फिजिकल स्पेसेस, फॉर फिजिकल स्पेसेस दिस जस्ट अ मीडियम टू शेयर एंड शोकेस. राइट? गॉट इट. आपको लगता है कि डिजिटल मीडिया जस्टिस कर रही है इन प्रमोटिंग these sacred spaces in India and beyond? I'm at a point where I said, please don't promote sacred spaces. But you don't want media to talk about the sacred spaces? Don't send tourists there. Don't send them in so many numbers that the place loses its sanctity. Really? Yeah. Why do you say so? Like because tourism and pilgrimage are two different things. So I want sacred spaces to be visited by pilgrims, and the rest of India can be consumed by tourists. In a layman term, how would you differentiate between a tourist and a pilgrim, and when does a tourist becomes a pilgrim? It's a long journey. A tourist is out there to enjoy, to engage in senses. अच्छी अच्छी चीजें देखना, अच्छी अच्छी चीजें खाना, अच्छी अच्छी चीजें सुनना, एडवेंचर करना, सेंसरी प्लेजर्स. और पिलग्रिम इसके ठीक ऑपोजिट करता है. वो अपनी सब इंद्रियों को अंदर की तरफ करता है, सब एक सात्विक ब्रह्मचर्य में जाता है और तब भगवान के घर जाता है. वाओ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही डीप था ये. बहुत ही ज्यादा, मतलब आई होप लोग ये समझ पाए इस डिफरेंस को कि व्हेन यू आर लोगों से पहले सरकार समझ पाए. मेरा लास्ट क्वेश्चन आज के एपिसोड का है आपके लिए. हमने बहुत ज्यादा इंडिया की बात की है, यू नो, देवी टेम्पल्स की बात की है, सेक्रेड स्पेसेस की बात की है, बट आप इंडिया के बाहर भी बहुत ज्यादा गई हैं. और एक क्वेश्चन हमने अपने ऑडियंस को बोला था कि आपको देते हैं हम वो हक कि आप पूछे, तो उन्होंने हमसे बोला था अंटार्कटिका के आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछने के लिए. मैं अंटार्कटिका नहीं गई हूँ. आपने मेरे ब्लॉग पे पढ़ा होगा, दैट्स अ गेस्ट पोस्ट. मैं अंटार्कटिका नहीं गई हूँ. अच्छा, क्योंकि आपने उसमें यू नो ज़ोडिएक ट्रिप के बारे में लिखा है और उसमें आपने गेस्ट पोस्ट रिटन बाय अ फ्रेंड, सो आई हैव नॉट बीन टू अंटार्कटिका. नो. ओके, तो क्या वो आपके लिस्ट में? ओके, नॉट येट आंसर्स दैट क्वेश्चन कि आप यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग देयर. आउटसाइड इंडिया कौन सी एक कंट्री है जिसने आपको बहुत ज्यादा प्रभावित किया है आपके जर्नी में? I quite liked Indonesia, but that's also because I found so many temples there. But the countries I want to visit, I've already given you the list. I want to visit Egypt, I want to visit Japan, I want to visit Greece,
the Mayan civilization, so all the places that have a history of an ancient living civilization. मैं कनाडा भी गई थी, तो वहाँ पर भी मैंने जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे समझ में आई वो थी उनका फर्स्ट नेशंस कल्चर, जिसको हम अपनी भाषा में आदिवासी कल्चर बोल सकते हैं. That जो रेड fascinated इंडियन me so कल्चर much. है. Not they call it First Nations now. यूएस में जो वो कल्चर है दैट्स स्टिल कॉल्ड रेड इंडियन, तो क्योंकि Yeah. वो अक्रॉस द बोर्ड है ना, पूरे नॉर्थ अमेरिका में इट्स गॉन देयर. True. True. थैंक यू सो मच अनुराधा. मुझे पता है कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा लेट हो गया है एंड यू हैव बीन patiently answering a lot of my questions. You cleared a lot of doubts, and I hope to do another episode with you on Sure. the urban versus rural women in India, because that topic I think is going to be a little deep and it would I'm going to really, give you really a recommendation. एक श्रीलाल शुक्ल की एक किताब है राग दरबारी, आपको आराम से ऑनलाइन मिल जाएगी. Read that and then we'll. Absolutely. We'll do that. Thank you so much for being on our show. Thank you for giving us your time. मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ आपकी कि आप हमारे शो पे आए, एंड आई होप कि हमारे दर्शकों को बहुत मज़ा आएगा ये पूरा कॉन्वर्सेशन सुन के. थैंक यू फॉर शेयरिंग सो मेनी हार्टफुल मैसेजेस विद आवर ऑडियंस, एंड थैंक्स टू ऑल आवर लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इनटू दिस एपिसोड ऑफ दी गर्ल नेक्स्ट डोर, जहाँ हम बातें करते हैं दिल से दिल तक. अगर आपके पास है कोई स्टोरी, आपके पास है कोई ओपिनियन, या आप जानते हैं किसी एवरीडे हीरो को, तो हमें रिकमेंड कीजिए @thegirlnextdoor@gmail.com, और हम उनको अपने प्लेटफॉर्म पर लेके आएंगे और हम उनसे करेंगे ढेर सारी बातें, क्योंकि हमें पता है कि शेयरिंग स्टोरीज, सेलिब्रेटिंग लाइफ में कितना मजा आता है. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम द इनक्रेडिबल साउथ एशियन ट्रेल ब्लेजर्स अक्रॉस द ग्लोब. Until next time, take care and keep inspiring.